in chapter 7, the necklace, till yesterday we read that there was a lady whose name was Matilda, and she wanted to live a luxurious life, but she was born in the family of clerks and a mediocre family. She was not able to, just enjoy all those luxury of the life. One day she got an invitation of a ball poem, and her husband gave her 400 francs to purchase a suitable dress for that particular party. So now after getting that the money for the dress, she was again getting gloomy day by day as the day of that ball party was approaching. So again her husband asked, why are you so sad now? You have got the money for the dress suitable for your ball party. So she said, okay, I got that dress, but what do you think? How I am going to adorn myself among the so many rich females? So her husband given suggestion, why don't you use flowers to adorn yourself? It will look beautiful on you. So she said, no, it would be awkward among so many rich females. My jewelry was giving such a awkward fragrance. Then he came up with an idea, why don't you go to your school friend, that is Ma'am Froster, to borrow some suitable jewelry for you. So she got elated, she got happy, and she went to that girl, Ma'am Forrester. Although she didn't like her, because every time she visited her, she got sad and got jealous out of her because she was very rich. And she also wanted to enjoy all those luxuries which Ma'am Forrester was enjoying. But now she wanted the jewelry. She went to her, and when she asked Ma'am Forrester for the jewelry, she has given so many things to her and asked Matilda to choose anything for herself. But Matilda didn't get anything suitable for herself. Then she once again asked Ma'am Forrester, do you have something else out of these things? So she said, you can go to my cupboard and search out by your own, because I don't know what will be suitable for you or what the thing you want. She went there. There was a satin box, and in that satin box there was a diamond necklace. She liked it. It was a perfect thing for her to put on the day of ball party. So the day arrived, the ball party day arrived. She adorned herself with that necklace. She put on that pretty dress, and they went to the ball party. That day was the happiest day of her life, because she was a center of attraction for all the people who were present over that ball party. Because already she was pretty. Now she has that jewelry to adorn herself. She has that pretty dress. So she was looking one of the most beautiful ladies out of those rich who were present there. She was enjoying, and many male persons are asking her to have a dance with them, because it's a ball party, and she was enjoying thoroughly. Throughout the night she enjoyed, and her husband waited somewhere in the salon to just get her free from that party. In the morning, I would say it was dawn, around 4 o'clock in the morning, she called her husband and asked her to leave that place. But she was in a hurry to leave that place, because she doesn't want to give her poverty-stricken look in front of those people who are just misinterpreting her to be a rich female. Because she has to put on a fur, a cape, लेकिन वो उसके उन फर केप से बिल्कुल अलग था जो रिच फीमेल्स अपने आप को रैप करने वाली थी. बड़ा पुराना सा था. तो she quickly just snatched that fur over there from there and came downstairs running. लेकिन उसका हस्बैंड ने उसको बीच में टोका भी, don't be in such a hurry, just wait. But she didn't listen to anything, because she didn't want to reveal that कि she is not rich in front of those people. रोड पर आ जाते हैं, they search for a vehicle but they didn't get any. थोड़ा सा वॉक करते हुए रिवर की साइड तक आते हैं. There they got a carriage. They sat in the carriage और घर पर आ जाते हैं. Now for the last time Matilda stand in front of the mirror to have a final glance of herself, because क्योंकि वो प्रेस करना चाहती थी अपने आप को. तो जैसे ही उसने अपना वो केप हटाया and she looked at herself in the mirror, she was shocked. She gave a cry. उसका husband भी shocked हो गया कि what happened now? Then she told that she lost the necklace.
तो देन हर हस्बैंड आस्क्ड कि हाउ इट कम, कहाँ पर खोया, कैसे खोया, डू यू रिमेंबर वॉज इट देयर व्हेन यू केम डाउन स्टेयर्स फ्रॉम द बॉल पार्टी? शी सेड कि हाँ मैंने, आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज अराउंड माय नेक बट नाउ इट्स नॉट हियर। तो ही वेंट बैक, उसी रास्ते पर वापस जाता है जहाँ से वो आए थे, बट ही डिडंट गेट एनीथिंग। फिर वो पूछते हैं कि हो ना हो सकता है कि वो जो नेकलेस था इट मस्ट बी ड्रॉप्ड इन दैट कैरेज जिसमें वो आए थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी उस कैरेज का नंबर नहीं पता था। न्यूज़ अगला दिन हो जाता है, न्यूज़पेपर में प्रिंट दिया जाता है कि किसी को अगर मिले या कैरेज के लिए वो एडवर्टाइज करते हैं, बट देयर वाज नो रिजल्ट। देन जो उसका हस्बैंड है उसको एडवाइस करता है कि गो टू मैम फॉरेस्टर एंड आस्क फॉर अ वीक, उसको बोलो कि जो आपका नेकलेस है उसका एक हुक जो है टूट गया है, तो यू नीड 1 वीक टू गेट इट मेंड। यही करती है, 1 वीक मिल जाता है। अब क्योंकि उनको अब वो सारी होप्स उनकी खत्म हो चुकी हैं कि उनको वापस मिलेगा, तो दे वेंट इन सर्च ऑफ अ न्यू डायमंड नेकलेस विच एग्जैक्टली लुक लाइक विच शी लॉस्ट। उनको कहीं नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद एक ज्वेलरी शॉप पर उनको एक चैपलेट मिलता है। हालांकि वो चैपलेट है, नॉट अ नेकलेस, लेकिन इट लुक अलाइक बिल्कुल जो उनसे लॉस्ट हुआ था। उसका जब कॉस्ट पता चलता है तो इट वॉज क्वाइट हाई, इट वॉज ऑफ 40,000 फ्रैंक्स। थोड़ा बार्गेन वगैरह करके वो 36,000 पे आकर फिक्स होता है उनका। बट जिसके पास 400 फ्रैंक्स भी नहीं थे ड्रेस परचेज करने के लिए, हाउ दोज पीपल आर गोइंग टू मैनेज सच अ ह्यूज अमाउंट? तो क्या करते हैं, जो मिस्टर लोसेन हैं उनके फादर ने उनके लिए कुछ पैसा छोड़ा था, दैट वाज ऑफ 18,000 फ्रैंक्स। स्टिल दे नीडेड हाउ मच? 18,000। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने पैसा उधार लेना शुरू किया, कुछ अशवर से, कुछ फ्रेंड से, जिस किसी से भी वो फॉल्स प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस कर करके ले सकते थे, वो सब पैसा उन्होंने उनसे उधार ले लिया और वो चॉकलेट खरीद के उसको फ्रॉस्टर को दे दिया। और जब वो फ्रॉस्टर को देने गई तो शी वाज एंग्री कि अरे तुमने मुझसे 1 हफ्ता बोला था और नाउ यू आर गिविंग मी, अगर मुझे उसकी ज़रूरत होती तो फिर क्या होता। ऑल्दो शी इवन डिडंट ओपन द बॉक्स, उसने देखा भी नहीं कि वेदर इट इज इन द बॉक्स और नॉट, चलो रख दिया। अब उन्होंने जो 18,000 फ्रैंक्स उधार लिया था वो वापस भी करना था, तो नाउ दे हैव टू लिव अ डेस्परेट लाइफ। बहुत खराब जिंदगी होने वाली थी अभी आगे उनकी। जो उनका अपार्टमेंट था उसको छोड़ के दे कम टू अ रेंटेड रूम, वहाँ पर उन्होंने जो उनका मेड की छोटे मोटे काम करने की उसको हटा दिया। मटिल्डा नाउ डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क बाय हरसेल्फ। मार्केट्स भी जाती है तो उसके लिए भी वो पैदल जाती है, पैदल आती है, छोटी छोटी चीज़ों पर बार्गेन करती है, चाहे फ्रूट सेलर है चाहे वेजिटेबल सेलर है, हर चीज़ में वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती है। ऑन द अदर हैंड हिज हस्बैंड इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। वो पार्ट टाइम जॉब करने लगे एक शॉप पर जिसमें शाम को वो बुक शॉप है जिसमें शाम को बुक्स वगैरह लगाते हैं, और 501 पेज कॉपिंग का उन्होंने काम शुरू किया था। और इस तरीके से करते 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 आखिरकार वो जो पैसा उन्होंने लिया था, बोरो किया था, दे पेड। नाउ कभी कभी क्या होता था, वो अकेली रहकर विंडो पर बैठकर सोचती थी कि दैट डे विच वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ हैज चेंज्ड हर होल लाइफ। कर दिया ना चेंज, जो हैप्पीएस्ट डे था वो क्या बन गया, उसकी लाइफ का वर्स्ट डे बन गया। उसी दिन उसने अपने आप को सबसे ज्यादा खुश देखा और उसी दिन से उसकी लाइफ ने एक नया कोर्स ले लिया। तो वन डे शी वेंट टू अ स्मॉल स्टॉल इन अ पार्क वेयर शी सॉ हर दैट फ्रेंड मैम फॉरेस्टर। तो अभी उसको था कि अब तो मैंने सबका पैसा भी चुका दिया, इसको इसका डायमंड भी दे दिया, तो मैं हेजिटेट क्यों करूं। तो शी वेंट टू हर, टॉक टू हर, और उसके निक नेम से उसको बुलाती है। तो मिसेस फ्रॉस्टर जो होती है, मैम फ्रॉस्टर जो है, शी वाज शॉक्ड कि ये कौन है, तो शी इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट शी इज मटिल्डा। तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि हु आर यू एंड हाउ डू यू नो माय निक नेम। तब वो बताती है कि हाँ तुम क्यों पहचानोगी, ये मैं हूँ मटिल्डा। तो शी वाज शॉक्ड कि अरे तुम तो बहुत ओल्डर लग रही हो अपनी एज से, लुक एट योरसेल्फ, क्या हो गया तुम्हारे बाल ऐसे फैले हुए हैं, तुमने ऐसा ड्रेसअप किया हुआ है। देन शी टोल्ड कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई दिस कंडीशन। तो शी सेड कि हाउ कम आई, मैं कैसे, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। देन शी टोल्ड कि द नेकलेस जो मैंने आपसे बोरो किया था, आई लॉस्ट दैट, एंड टू गिव इट बैक टू यू वी हैव टू परचेज अ नेकलेस बाय गिविंग 36,000 francs. And after listening that, Ma'am Foster
उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है, ओ पुअर मैटिल्डा, ये तुमने क्या किया? वो जो मेरा नेकलेस था, इट वॉज अनरियल, वो नकली था और उसकी कीमत सिर्फ कितनी थी? 500 फ्रैंक्स। एंड हाउ मच शी पेड? 36,000, the earning of whole of her life and her husband. So this chapter gives us a huge message that we got to see. There are two messages we got. First, whatever we have, we should be satisfied with that only. जो दूसरों के पास है उससे जेलस होना, उसको पाने की इच्छा रख, हाँ सपने देखो, ड्रीम्स देखो, बट ट्राई टू फुलफिल देम बाय डूइंग समथिंग। ये नहीं है कि दूसरों के पास है हमारे पास क्यों नहीं है, जलते रहो, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। दूसरा, इफ यू हैव कमिटेड समथिंग रॉन्ग, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, जस्ट गो एंड एक्सेप्ट, दैट्स इट। मान लो गलती हो गई, इससे क्या होगा? अगर ये मान लेती, दोस्त थी इसकी, अगर बता देती तो हो सकता है क्या, डेफिनेटली इसकी लाइफ इतना चेंज नहीं आता जितना कि था।